اہم کریں. میں نے پارلیمان میں کہا کہ اگر واجپئی سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے, مودی سے بات کی جا سکتی ہے, تو خان صاحب سے بات کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اے پی سی بلائیں, آل پارٹیز کانفرنس, خان کو بھی بٹھائیں, اختر مینگل, تمام سٹیک ہولڈرز, بلوچ, سندھی, پنجابی, پٹھان, گلگت بلتستانی, کشمیری, تمام سوچ اور فکر کو گلے لگائیں. پھر دیکھیں, سی دا ڈفرنس. یہ قوم لازوال غیرت مند ہے, قوم کو اللہ نے نوازا ہوا ہے, اور ہم صرف آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. ہم کوئی انڈیو فیورز. میرا خان کبھی بھی این آر او نہیں لے گا, کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. خان صرف اور صرف حق کے لیے کھڑا ہے, اور انشاءاللہ اس میں جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. اللہ عمران خان کو سرخرو کرے گا. اللہ کے سر, آپ نے قید و بند کی صورتیں برداشت کی. لوگ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جمع ہوئے, آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں؟ جی, ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی جو پیشیاں یہ نہیں لگاتے جان بوجھ کے تاکہ ان کے کیسز ڈیلے ہوں. تو آج ایم پی ایز, ایم این ایز, آئی ایل ایف اور تمام جو ورکرز تھے ہر صوبے سے جو یہاں پہنچ سکتا تھا وہ پہنچیں, اور پارٹی کے اعلیٰ عہدیداران. اور ان کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو یہ کہا جائے کہ ہمارے کیسز لگائے جائیں جو قانون کے مطابق ہیں. جب یہ پیشیاں نہیں لگاتے تو اس سے یہ ہمارا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ضمانت کے کیسوں میں کچھ ہے نہیں, خان صاحب کے خلاف تمام کیسز بوگس ہیں, تو یہ پیشیاں جان بوجھ کے نہیں لگاتے تاکہ یہ ڈیلے ہو. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ پیشی لگائیں, جو بھی آپ کی مرضی ریجیکٹ کرتے ہیں آپ کیس, ہم اعلیٰ سے اوپر والی عدالت میں جائیں گے, لیکن کیس نہ لگانا جو ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو اس حوالے سے ہم یہاں سارے جمع ہوئے ہیں, اور ہماری ایک جو سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جو کیسز ہیں یہ جلد از جلد لگائے جائیں. اب آپ لوگ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جمع ہوئے ہیں, کیا مطالبات ہیں آپ لوگوں کے؟ سنگل مطالبہ عمران خان کی رہائی, اور تھوڑا سا حیا کر لیں یہ لوگ جو بغیرتی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ انصاف ہے. 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے جوڈیشری کو بھی ایگزیکٹو کے نیچے کر دیا ہے. پاکستان بیسیکلی انٹرنیشنلی بھی آئسولیٹ ہو چکا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, ایک مذاق ہم بن چکے ہیں. تو یہی ریکویسٹ ہے کہ انصاف مانگتے ہیں ہم, کوئی بھیک نہیں مانگتے, کوئی این آر او نہیں مانگتے, انصاف مانگتے ہیں. اور انصاف کے مطابق عمران خان کے سارے کیسز بچے کو پتہ ہیں, آپ 5ویں کلاس کے بچے سے بھی پوچھ لیں, وہ بھی آپ کو کہے گا کہ یہ کیسز جھوٹے ہیں. تو یہ بے بنیاد کیسز جو ہیں ختم کیے جائیں, عدالتیں بند ہو جاتی ہیں. ہمارے کیس جب لگتے ہیں تو عدالتیں کہتی ہیں کہ ڈی لسٹ ہو گیا کیس لگائیں, فیصلہ حق میں کرنا ہے, خلاف کرنا ہے. اگر اللہ سے ڈرتے ہیں تو حق پہ کر لیں. سر, 26ویں جو ترمیم پاس کی گئی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو کتنی امید ہے کہ ان عدالتوں سے, یا ان عدالتوں کو آپ لوگ آزاد کروا دیں گے, یا آپ لوگوں کو یہاں سے انصاف مل جائے گا؟ دیکھیں, یہی تو جنگ ہے. ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں, دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ جوڈیشری ایگزیکٹو کے نیچے ہو. 26ویں ترمیم سے انہوں نے جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے نیچے کر دیا, اور یہ جنگ ہماری جاری ہے انشاءاللہ, اسمبلی کے اندر بھی, اسمبلی کے باہر بھی. اور وی ہوپ کہ بیٹر سینس پریویلز, اور پاکستان کا جتنا مذاق بن چکا ہے یہیں پہ ہم اسٹاپ کر لیں. میرے خیال میں مزید مذاق اس ملک کا نہ بنائیں. سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ کیا جاتا تھا کہ ایم این ایز, ایم پی ایز, پارلیمنٹیرینز کہاں ہیں. آج گزشتہ 4 گھنٹے سے آپ دیکھ لیں کہ سارے ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز, پارلیمنٹیرینز یہاں پر خان کے لیے کھڑے ہیں. اٹس اے بگننگ. تحریک کا سارا لاہ عمل جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے, وہ آج سے 1 ماہ پہلے ڈیسائیڈڈ تھا, لیکن عید کے بعد کچھ چیزیں ایسی انفولڈ ہوئی, ہم نے اس کی بگننگ کر دی تھی. جس دن انڈیا نے حملہ کیا ہے اس دن ہماری اے پی سی تھی لاہور, ہم لاہور سے سٹارٹ کر چکے تھے, لیکن ایک قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے اس اے پی سی کو پوسٹ پون کیا گیا کیونکہ فلائٹس بند ہو گئی تھیں اور تمام اتحادی جماعتوں کی لیڈرشپ لاہور نہیں پہنچ پا رہی تھی. تو ابھی انشاءاللہ اس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ابھی ان قریب اگلے 1 دن میں یا 2 دن کے اندر وہ میٹنگ ہے, وہ سارا پلان چاک آؤٹ ہو چکا ہوا ہے. اٹس بگننگ ٹوڈے, آج سے آگے انشاءاللہ چلیں گے. اور جائے گی پورے ملک میں عوام کو موبلائز کریں گے, اور ہم صرف ون پارٹی چلتا ہے, رول آف لا, قانون کے اوپر. ہم صرف جو ہے نا ملک میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن چاہتے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آئے ہیں, چاروں صوبوں کی لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے. سر, آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں؟ نمبر 1 ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان اور جتنی بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کے خلاف جتنے کیسز ہے اس کے اوپر جو ہے ہم انصاف چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے حوالے سے انصاف دیں. ہم صرف میرٹ کے اوپر جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیسے ہو. جو ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے کیسز کو سیاسی بنیادوں پہ جو ہے نا اس کو سبوتاش کیا جا رہا ہے, تو ہم صرف ایک چیز مانگتے ہیں, ہم اپنے عمران خان کے لیے جسٹس چاہتے ہیں, اپنے پارٹی کے لیے جسٹس چاہتے ہیں, انصاف چاہتے ہیں. عدالتوں کا کام ہے کہ وہ انصاف دے. اگر عدالت انصاف نہ دے تو پھر ہمیں بتائے وہ جگہ کدھر جائیں گے کہ انصاف کے لیے کون سا راستہ ہے ہمارے پاس انصاف. سر, آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر انصاف کے لیے پہنچے ہیں. ہائی کورٹ کے باہر پولیس کی
दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, तो क्या लगता है 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप लोगों को इन अदालतों से इंसाफ मिलेगा? देखिए, हम तो अपना मुतालबा करेंगे, हम तो अपना इत्तलात रखेंगे, हम तो अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपने लोगों के पास मोबिलाइज करेंगे, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और हम जो भी है हमारे पास ये है कि हम आवाज़ उठाएं, हम आवाज़ उठाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं, आप लोगों के क्या मुतालिबात हैं यहाँ पे? हमारे मुतालबात है इमरान खान को रिहा करो, रद्दिया को रिहा करो। सर, 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप लोग कितने पुरुमीद हैं कि आप लोगों को इन अदालतों से इंसाफ मिलेगा? इन अदालतों की रिहाई के लिए तो आए हुए हैं, इनसे तो उम्मीद कुछ नहीं है। सर, कौमी लीडर जेल में कैद है, 2.5 साल होने वाले हैं, लीडरशिप क्या इकदाम कर रही है खान साहब की रिहाई के लिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर हमारी लीडरशिप है, उनकी जब भी जिस किस्म की भी कॉल आती है जबरकर हम उसमें शामिल होते हैं, और जिस तरीके से उनकी तरीकाकार होता है उसके ऊपर अमल करने के हम पाबंद होते हैं और करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चारों सूबों की लीडरशिप जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची है, आप लोगों के क्या मुतालिबात हैं? सर देखिए, सिंपल सी बात है, हम कोई फेवर नहीं चाहते, हम कोई एहसान नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक अदलिया फैसले करे। बेशक 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत ने तबाह बर्बाद कर दिया है अदलिया को, लेकिन फिर भी अदलिया में ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं, सही मानों में स्टैंड ले सकते हैं और आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। हम ये नहीं चाहते कि हमारे हक में कोई फैसले करें, लेकिन जो कानून है, आइन है, उसके मुताबिक फैसले करें, तो सुने। सर, आप कराची से आए हैं, आज चारों सूबों की लीडरशिप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची है, सर आप लोगों के क्या मुतालिबात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त चारों सूबों की लीडरशिप भी मौजूद है और उसके अलावा जितने कैबिनेट्स के मेंबरान हैं, डिविजनल सतह के जितने मेंबरान हैं वो मौजूद है। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारा जो चोरी शुदा मैंडेट है वो वापसी दो। पाकिस्तान की खुशहाली इसी में ही है कि आपने जो मैंडेट चोरी किया है वो फौरन वापस करो, ताकि इस मुल्क की तकदीर बदली जा सके और इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम ने जिनको वोट दिया है उन्हीं को ला करके आप असेंबली में बिठाएं, ताकि खुद मुख्तार और आजादाना फैसले हो। पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ही जरूरी है कि जो चोरी शुदा मैंडेट है उसको फौरन बिलफौर वापस किया जाए। स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आज चारों सूबों की लीडरशिप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची है, क्या मुतालिबात हैं आप लोगों के? अच्छा, आज दो बातें शाह साहब पहले रहे, आप दूर पे खड़े हैं। जी सर, दो बातें, एक खान साहब की रिहाई और दूसरी अदलिया की रिहाई। खान साहब की रिहाई का तो पूरी कौन बात को वाजे क्या मौके पर उसमें पीटीआई था। अदलिया के ऊपर यह है कि हमारी अदलिया कह रहे हैं हमारे जजेस को फराज कर दिखा रहे हैं, खासकर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशरी को बिल्कुल मकीद कर दिया गया। लिखे हुए फैसले आते हैं, चैम्बर्स में उनको डिलीवर होते हैं और वो आगे सुना दिए जाते हैं। अब ऐसी सूरत जिस माशरे में, जिस मुल्क में, जिस कौम में इंसाफ खत्म हो जाता है वो कौमें तबाह हो जाती है, वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। सर कोशिश कर रहे हैं कि अदलिया को जो इज्जत और वकार है वो दोबारा बहाल हो। सर, 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप लोग कितने पुरुमीद हैं कि आप अदलिया को आज़ाद कर लेंगे या फिर इन अदलियों से आप लोगों को इंसाफ मिल जाएगा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारी लोग अपने रब से और हमारा मुर्शिद जो है उसने हमेशा हमें रूल ऑफ लॉ के अंदर रहते हुए जद्दोजहद करना सिखाया है। तो हम पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस सिस्टम के अंदर रहते हुए तब्दील करेंगे। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज आप लोग आए हैं, चारों सूबों की लीडरशिप आई है, सर आप लोगों के क्या मुतालिबात हैं? हम जगाने आए कि जी जांच जाए, वो जो इमरान खान जेल के अंदर है, जो इस मुल्क का गमखार है, जो जिसके पीछे सारी अवाम, सारी कौम खड़ी हुई है, उसके केसेस नहीं लग रहे, इंसाफ तो फिर दूर की बात है। और जो आपने फैसले किए हुए कि क़यादत को वहाँ जेल में उसके साथ मिलने दिया जाए, उसकी फैमिली को मिलने दिया जाए, उस आपके फैसले के ऊपर अमल नहीं हो रहा। तो हम तो कहते हैं कि हमारी अदालतों को, इंसाफ देने वालों को अभी जागना चाहिए और इंसाफ जो है वो होता हुआ नजर आना चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ बिल्डिंगें बनी हुई हो और इमारतें हो, इंसाफ जो है वो दिखाई ना दे रहा हो।
दिखाई देता हो। तो उसके लिए आए तमाम पार्लियामेंटेरियन आए पूरे पाकिस्तान से, और ये जो हमारी मुज़ाहमत का जो अमल है ये उसकी पहली कड़ी है, ये इंशाअल्लाह ताला आगे जाता जाएगा। सर, आप जिस अदलिया के साथ इजहारी यकजहती के लिए आए हैं, तो उस अदलिया के बाहर आप देख सकते हैं कि पुलिस की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कितने आप पुरुमीद हैं कि आप लोगों को इन अदालतों से इंसाफ मिलेगा? हम पहले दिन कह चुके हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो इन्होंने हमारी अदालती निज़ाम का जनाजा निकाला है, तो उम्मीद तो कोई नज़र नहीं आ रही। उसके बावजूद हम यही कहते हैं कि अदालतों के साथ कौम खड़ी है, जजों के साथ कौम खड़ी है, आप जाग जाए, इंसाफ दें। आपका बड़ा नोबल कॉज है और उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। नहीं है तो मुज़ाहमत का रास्ता हमें आईन और कानून ने दिखाया हुआ है, उसके ऊपर चलेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं, आप लोगों के क्या मुतालिबात हैं? चारों सूबों की लीडरशिप इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। आप पीछे देख सकते हैं जिस अदालत के साथ आप इजहारी यकजहती के लिए आए हैं, वहाँ पे पुलिस की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। शुक्रिया आपका। जैसे आप सबको मालूम है कि आज हमारे एक पुरअमन एहतजाज है, और एहतजाज हमारे यही है कि खान को रिहा कर लें, और इन अदालत से हम तवक्को रखते हैं जो अवाम के पैसों से बना हुआ है, और इससे हम उम्मीद करते हैं कि आप खान की रिहाई जो है ना हम हर हद में चाहिए, और अवाम एक ही डिमांड करते हैं खान की रिहाई, और हम ये एक ही अदालत है, हम इससे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे मुतालिबात को मंजूर करें। अब हमारे साथ मौजूद है सर, आप लोग यहाँ पे चारों सूबों की लीडरशिप आई है, आप लोगों के क्या मुतालिबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफें रब की और अरबा दरूद इमाम अल-अंबिया खातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ये सिर्फ 4 सूबों के नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद टेरिटरी, कौमा फाटा, पूरे पाकिस्तान की तमाम इकाइयों से फॉर्म 45 जीते हुए जो कैंडिडेट्स थे वो MNA, सेनेटर सब यहाँ पे मौजूद है। मकसद एक है कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, इस मुल्क में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो, और हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खान साहब के केसेस को प्रायोरिटी पे सुने ताकि सारी चीजें क्लियर हों। और जब भी आप बुनियादी हकूक सलब करते हैं तो मुल्क की बुनियादों को नुकसान पहुंचता है। जिस तरह मेरा लीडर जेल के अंदर 8/7 की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, डेथ सेल में हिंदुस्तान को और मोदी को ललकारते हैं, और जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, उन्होंने जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। खुदा के लिए इस मुल्क की पर रहम करें, सबको बैठाएं, सबको इज्जत दें, एंगेज करें, और मेरा लीडर अनड्यू फेवर नहीं मांगता। हाँ, पाकिस्तान के हर लेवल पे जाने के लिए तैयार है। साहब, चारों सूबों की क़यादत इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है, क्या मुतालिबात है आप लोगों के सर? पहली दफा 8 फरवरी के बाद अरकान कौमी असम्बली एक बड़ी तादाद में तकरीबन तमाम के तमाम यहाँ हाजिर है अपने लीडर इमरान खान के एक इशारे पर। हमारा मुतालबा है कि इमरान खान पर जो झूठे मुकदमात हैं उनकी जल्द समाप्त करें, और इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को इंसाफ दो, और अदलिया को आज़ाद करो। ये हमारा मुतालबा है। मैडम सरफराज गुल वजीर साहिबा, चारों सूबों की क़यादत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है, क्या मुतालिबात है आप लोगों के? मुतालबा एक ही है कि पिछले 3 साल से मेरे लीडर इमरान खान को, उनकी बेगम साहिबा को, साथियों को, कारकुनान को, वोटर को, सपोर्टर को, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जुल्म और जबर का निशाना बना के इंसाफ नहीं मिला। हम डील नहीं चाहते, हम सिर्फ मेरिट के ऊपर फैसले चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस कदर जुल्म है, इस कदर 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को, जुडिशरी को अंडरमाइन किया गया है कि अब एक आम जमानत के लिए भी आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता, आपको लोअर कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिलता। अब कितने लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट का वकील अफोर्ड करें, दरवाजा खटखटाते हैं। इसलिए इस मुल्क के अंदर इंसाफ की फराहमी के लिए अपने लीडर इमरान खान की बेगुनाह, जो कि सारी दुनिया जानते कि बेगुनाह है, उनके बेगम साहिबा भी, तमाम कारकुनान को अब हमारे केसेस लगा के जजों को, जुडिशरी को अंडरमाइन ना करें, इंसाफ होने दें, जमानतें होने दें, केसेस के फैसले होने दें, मेरिट के ऊपर होने दें। मेरा लीडर भी बेगुनाह है और मेरी पार्टी की जुल्म बर्दाश्त करिए। इतना अरसा हो गया, इसके बावजूद भी हम पुरअमन है, जदोजहद हमारी जारी है आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, बेगुनाह लोगों के लिए, अफराद के लिए। एट द टॉप हमारे लीडर इमरान खान के लिए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस, MNA, सेनेटर्स, MPs, स्टेक होल्डर सब यहाँ पे मौजूद हैं। पुरअमन है, सिर्फ जजेस से ये एहतजाज कर रहे हैं, हम सिर्फ इल्तमास कर रहे हैं कि हमारे इस फैसले मेरिट के ऊपर जल्द अज जल्द निपटाए जाए। मेरे लीडर खान साहब बेगुनाह उनको रिहा किया जाए, उनकी बेगम साहब। मैडम, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के इसमें तरक्की दी गई है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं, आप लोगों के क्या मुतालिबात है? आज चारों सूबों की लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। देखिए, सीधी बात है, हमारे मुतालबात है कि कानून और इंसाफ से काम लिया जाए। अब ये बहुत हो गया, अब खान साहब के जो केसेस हैं वो सुने जाएं, रिलीफ किया जाए। जजेस को हम सपोर्ट करने आए हैं क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशरी को इन्होंने कम्प्लीटली स्टैक कर दिया है, कॉम्प्रोमाइज हुई है, जुडिशरी और प्रेशर में है। हम जुडिशरी को मैसेज देने आए हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। अलकादिर को आज डीलिस्ट कर दिया, अलकादिर के अंदर फौरी सुनवाई होनी चाहिए ताकि जो कोर्ट का रिसेस है उससे पहले खान साहब को इंसाफ मिले और कोर्ट के ऊपर मेरिट के ऊपर फैसले हों। इसलिए हम आज यहाँ पे आए हैं। सर, आप जिस अदलिया के साथ इजहारी यकजहती के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं, तो पीछे आप देख सकते हैं उस अदलिया के बाहर पुलिस की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप कितने पुरुमीद हैं इन अदालतों से आप लोगों को इंसाफ मिलेगा या फिर आप इस अदलिया को आजाद करेंगे? देखिए, पुलिस तो आप भी आते रहे हैं, कवर करते रहे हैं। पुलिस तो शुरू दिन से ही, जब से ये 2 साल से ये चल रही है फस्तायत, तो पुलिस का बल्कि इसी तरह का रवैया रहा है। और पुलिस वाले भी बेचारे हमें आके कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हमारी नौकरी है, उनको भी कहीं और से इंस्ट्रक्शन आती है। तो ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद, उससे पहले भी आपने देखा कि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत आया कि हमारी बगिंग हुई हुई है, हमारे सर्वेलेंस में हमें ब्लैकमेल किया जाता है, और तब भी हम उनके साथ खड़े थे। आज भी हम उनके साथ ही खड़े हैं। हम उनको ये बताने आए हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी हैं और इंशाल्लाह आप हमें अगर इंसाफ देंगे, हम असेंबलियों में जाके ये जो काला कानून है 26वीं आईनी तरमीम, इसको हम रिपील बैक करेंगे। थैंक यू। इस टाइम बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नौजवान सदाम खान तरीन साहब हमारे साथ मौजूद है। सदाम तरीन, आज पूरे चारों सूबों की क़ियादत इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची है, क्या मुतालिबात हैं आप लोगों के? सबसे पहले मुतालबा तो ये है, जो गैर आईनी तौर बोंडे केस बनाए गए हमारे लीडर को, जिस केसों की वजह से कस्टडी में रखा हुआ है, पूरी तौर उन केसेस को सुना जाए। उन केसेस को सिर्फ इस वजह से नहीं सुना जा रहा है क्योंकि वो केसेस, तमाम तर जितने केस है वो गलत केस है, वो आप साबित ही नहीं कर सकते हैं। आईन और कानून के मुताबिक वो केस इमरान खान पे बनते ही नहीं है, जिसकी वजह से इन केसों को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लिहाजा हमारा यही आपसे इल्तिजाए अर्ज है कि आप इन केसों को सुने। अगर आईन और कानून के मुताबिक उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए, तो कौन सी ताकत है जो आपको रिहाई देने से रोक रही है? कौन सी ताकत है जो आपको एक फंडामेंटल आईनी जो बुनियादी इंसानी हकूक होते हैं, चाहे कोई कैदी भी हो तो उनके केस को सुना जाता है। लेकिन यहाँ इस मुल्क में कोई अजब निज़ाम हमें नजर आ रहा है, न कोई कानून है, न कोई दस्तूर है, न इंसानियत है, न शरीयत है, मतलब कुछ भी यहाँ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ दुनिया से भी हट के हमें कुछ और नजर आ रहा है। सदाम तरीन, आखिर में ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप लोगों को कितना यकीन है और कितने पुरुमीद हैं कि इन अदालतों से आप लोगों को इंसाफ मिलेगा या फिर आप इन अदालतों को आजाद करने में कामयाब हो जाए? दरअसल हम सियासी कारकुन हैं, हमारा काम पुरअमन तरीके से जो जदोजहद है वो करना है, वगरना इस मुल्क में कानून और आइन जो है वो सिर्फ नाम तक रह गया है। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं, 17 सीटों पे अगर आप किसी को हुकूमत देते तो दुनिया को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, अपने मुल्क में रहने वाले अवाम को आप क्या पैगाम दे रहे हैं? यानी कहने का मकसद ये कि यहाँ कानून मौजूद ही नहीं है। जमहूरियत के नाम पर यहाँ जो जुल्म किया जा रहा है, जो जबर किया जा रहा है, दुनिया के किसी मुल्क में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो इस वक्त गजा में हो रहा है वही सब कुछ आपको 2 दिन पहले वजीरिस्तान और वाना में भी नजर आया, बलूचिस्तान में भी नजर आ रहा है। तो हमें उम्मीद है कि इमरान खान की रिहाई जो है इस मुल्क को आजाद खारजा पॉलिसी दे के इस जंग से और इस सूरत-ए-हाल से निकाल के इस्तेहकाम, अमन और इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज आप लोग चारों सूबों की क़ियादत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। सर, आप लोगों के क्या मुतालिबात हैं? हमारा तो मुतालबा ये है कि हम मज़ारी यकजहती के लिए आए हैं। इन जो हमारी अदालतें हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम मज़ारी यकजहती के लिए आए हैं जस्टिस साहबान के लिए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही यही हाल हुआ है कि केस जो है ना जो लगा के पेंडिंग कर दिया जाता है, जब जिस वक्त मर्जी हो, जिधर से आर्डर मिलता है तब लगाया जाता है। हम तो मज़ारी यकजहती कर रहे हैं अपने जस्टिस साहबान के साथ, और हमारा एक ही मुतालबा है कि इंसाफ के ऊपर फैसले हो और इस कौम के कैद को रिहा कर। सर, लगता है कि इन अदालतों से आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? देखिए, पब्लिक की डिमांड तो यही है
किसी भी मुल्क का जो निज़ाम है वो जस्टिस के ऊपर है, पब्लिक तो यही जो है एक्सपेक्ट करती है। इसीलिए हम अदालतों के साथ पूरी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये कौम खड़ी है कि ये 26वें आईनी तरमीम के तहत इनको पाबंद किया गया है। जिस तरह चाहते हैं, जिस तरह चाहती है ये फसाई हुकूमत अपने फैसले करवाती है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम ऐसे फैसले नहीं करवाने उन्हें देगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया। हाई कोर्ट से अभी बाहर आए हैं, अंदर क्या चल रहा है खान साहब के केसेस के हवाले से, क्या पेशरफ्त हुई अभी तक? देखें, बेसिकली पिछले हफ्ते हमारे साथ जज साहब ने वादा किया था, एक्टिंग चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने, कि नेक्स्ट वीक फलां तारीख के लिए हम इसको फिक्स कर रहे हैं। आज की डेट के लिए ये केस फिक्स था, लेकिन या ऑफिस रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से ये केस डिले कर दिया गया, लिस्ट में ही नहीं जारी किया। आज हम आए हैं इसी मकसद के लिए, और ये तमाम हजारों लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, लीडरान और ओहदेदारान तमाम इसलिए मौजूद हैं कि जो केसेस आपके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं खान साहब के, वो फिक्स किए जाएं। हम अभी इस टाइम भी चैम्बर में मौजूद हैं, हमारे कुछ दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें सरदार लतीफ मूसा साहब हैं, शेर शहीन साहब हैं, बिरसी गौर साहब हैं, अली जफर साहब हैं, इसी तरह के और 8-10 हमारे वकला दोस्त मौजूद हैं। और हम चैम्बर में अभी भी वेट कर रहे हैं कि जज साहब से मुलाकात हो, हम उनको बताएं कि आपकी इस केस ना लगाने की वजह से बाहर आपकी अदालत के बाहर हजारों लोग सफर कर रहे हैं। खुदारा इन केसेस को फिक्स कीजिए और डिसाइड कीजिए जो भी आपने करना है। हमने अपने आर्गूमेंट्स पेश करने हैं। ये केस वैसे हकीकत देखी जाए तो सियासी केसेस हैं, भोंडे केसेस हैं, और ये चंद मिनट्स में ही फारिग होने वाले केसेस हैं। आप देखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी होगी, अवाम पाकिस्तान की कामयाबी होगी, इमरान खान की कामयाबी होगी। सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हो, आप लोग चारों सूबों की लीडरशिप इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। सर, आप लोगों के क्या मुतालिबात हैं? हमारा एक ही मुतालबा है कि रिहा करो इमरान खान साहब को रिहा करो। इमरान खान साहब को कैद में बंद करके इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। मुल्क में आइन मुअत्तल है, मुल्क की ये अदालतें, हम हाई कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं, ये इंसाफ देने से कासिर हैं। इनको टुटलेस किया गया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये अदालतें बेकार हैं, ये फैसला नहीं दे सकती। इसी हाई कोर्ट के जज खुद जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट के उसको खत लिख रहे हैं कि हमें इंसाफ दिला जाए। ये खुद इंसाफ के मुतलाशी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के आइन के साथ मजाक बनाया गया है। मुल्क में इतनी महंगाई है कि अवाम खुदकशियां कर रही है। सच बोलने पे पाबंदी है। पीका एक्ट जैसे कानून लगाए गए हैं। फार्म 47 की ये अर्दली हुकूमत को, मुल्क के सारे चोरों को बिठा के ऊपर हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। हमारे पास यही रास्ता है। आज हम सिंबॉलिक MNAs, MPAs, फॉर्म 40 के MPAs और टिकट होल्डर यहाँ पे जमा हुए हैं, और हम अपना मैसेज दे रहे हैं उन मुक्तदरा को कि आप होश के नाखून लो। पाकिस्तान इस वक्त इस हालत में नहीं है कि आप जो ना अभी भी हमारे ऊपर इतना मुजालिम ढाते रहो। इमरान खान को आज़ाद करो, यही मुल्क का इस वक्त वाहिद हल है। इस वक्त मुल्क हालत जंग में है। अगर आप लोग इंडिया के साथ सीज फायर कर सकते हो, मोदी के साथ बात कर सकते हो, तो खान साहब के साथ भी आप लोगों को बात करनी चाहिए। खान साहब के लोगों के साथ भी सीज फायर करना चाहिए। इंडिया के साथ सीज फायर हो गया, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अभी भी घरों में घुस के उनको जो अरेस्ट किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। हम मुजाहमत में हैं, मुजाहमत की तरफ हैं। हम कह रहे हैं कि यहीं पे मसले हल हो जाएं। पाकिस्तान इससे ज्यादा मुतहमिल नहीं हो सकता। पूरा पाकिस्तान एहतजाज के लिए तैयार है। हमारा वाहिद मुतालबा है इमरान खान को, बुशरा बीबी को और तमाम कैदियों को आज़ाद करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों के क्या मुतालिबात हैं? सिंध से आप कितने लोग यहाँ पे पहुंचे हैं? देखिए, जो हमारे मुतालबात है वो बिल्कुल सिंपल और सीधा है। हमारा एक ही मुतालबा है कि सबसे पहले खान साहब को रिहा किया जाए, क्योंकि वो कैद ना हक में उनको गिरफ्तार किया गया है। कोई भी केस खान साहब पर अभी तक नहीं है, और उनको जिस तरीके से रखा गया है वो न सिर्फ पाकिस्तान का लीडर है बल्कि पूरे उम्मती उम्मा का लीडर है। आज जो फलस्तीन पर गुजर रहा है, आज जो कश्मीर में हो रहा है, उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक लीडर दे सकते हैं, और वो इमरान खान साहब है। हमारे जितने MNAs है, MPAs है, फॉर्म 45 के, ये सिर्फ और सिर्फ उनको कॉल दी गई है कि वो आ जाए, और वो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हम पहुंचे हुए हैं अलकादर ट्रस्ट में।
اور القادر ٹرسٹ کے بینیفیشریز بھی صرف اور صرف جو نواز شریف کے بیٹے ہیں زرداری ہے وہ ہے. وہ ابھی وہ جو پیسے بینک میں پڑے تھے شہباز شریف نے وہ بھی اپنے کھاتے میں ٹرانسفر کر دیے. تو وہ جو انسان جو باہر کی زندگی چھوڑ کر وہ یہاں پر آئے ہیں ان کو اس طریقے سے رکھا گیا ہے, یہ ناانصافی ہے. ہم صرف انصاف چاہتے ہیں, انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تو اللہ نہ کرے اس ملک کے لیے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. رافیل کو ہم گرا سکتے ہیں, S-400 کو ہم تباہ کر سکتے ہیں, لیکن پاکستانی عوام جو بہت زیادہ خان صاحب سے لگاؤ رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, اس پر کنٹرول آپ پھر نہیں رکھ سکیں گے. ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ کہ خان صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے, ورنہ پھر ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے, پھر ہم ڈی چوک کی طرف آئیں گے. آپ نے 26 نومبر کو جتنے ورکروں کو نشانہ بنایا ہے, آپ کی گولیاں ہوں گی, ہمارے سینے ہوں گے, ہمارے حوصلے آپ بس نہیں کر سکتے ہیں. آپ پھر آزمائیں, پھر آزمائیں, پھر آزمائیں. اسلام آباد کی طرف ہم آئیں گے اور دوبارہ آئیں گے. آپ میں اگر ہمت ہے تو ہمیں روک کے دکھائے. ہماری اس جو مفاہمت یا جو چیز بھی ہے اس کو آپ کمزوری مت سمجھے. آپ بھی ہمارے ہیں, فوج بھی ہماری ہے, لیکن خان صاحب کے ساتھ آپ مذاکرات کریں اور کچھ نہیں چاہتے ہیں. ایک ہی مطالبہ ہے, خان صاحب کو رہا کریں, ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. شکریہ سر.